वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से any 40 questions you were asked to attempt. This question paper is from class 11th commerce for the subject of business studies. जैसे कि आपको पता है कि टर्म 1 का जो आपका एग्जाम होगा, दैट टर्म 1 एग्जाम विल बी completely objective based. Multiple choice questions you will get, and this question paper have been developed strictly on the guidelines issued by the CBSE. So all those who are already my students, they will be able to know that what are the correct answers and all for the question paper that they have attempted, the examination that they have attempted. And all those who are watching this for the first time, then it will be a preparation for them कि आपके स्कूल में जो टर्म 1 का एग्जाम होगा उसका पेपर आपका किस तरह का आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद इट। जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से जरूर से आप लोग पढ़िएगा। ये हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ, जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन पर्टिकुलरली कहे गए हैं आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम, राइट। जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन में कहा जाए उतने ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप कम क्वेश्चन करेंगे तो भाई नो नेगेटिव मार्किंग है। अननेसली क्यों कम कर रहे हो? जब क्वेश्चन को करोगे अगर गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अटेम्प्ट तो सारे करने चाहिए। ज्यादा अगर आप करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि फिर सीक्वेंस में क्वेश्चन चेक होते हैं। कई बार होता है हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन गलत होता है, बाद के सही होते हैं, लेकिन मार्क्स उसके नहीं मिल पाते। So let's start with it. The first question we are having is, which of the following is a characteristic related to employment? जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा एक एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है? So the correct answer to this is salary and wages is the one of the characteristic of employment. Second question is, the owner is rewarded for conducting business and bearing the risk. What is the form of reward the owner receives? Conducting the business and bearing the risk के लिए ओनर को क्या रिवॉर्ड मिलता है? Profit is the reward for the owner for conducting the business and bearing the risk. Question number 3, the economic activity in which specialized knowledge is required. तो ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज प्रोफेशन। प्रोफेशन में स्पेशल स्किल्स की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, राइट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू द अदर इंडस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्शरी इंडस्ट्री, जो जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, which provide the support services, auxiliaries to trade to the primary and the secondary industry, right? अगर कहीं कोई डाउट, अगर किसी को लगता है किसी क्वेश्चन के आंसर में किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। I'll definitely take your answers within 2 to 3 hours. Fine. Now question number 5, this business risk cannot be insured. ऐसी business risk है जिसको इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो भाई फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस हो सकता है, एक्सीडेंट डैमेज ऑफ द एसेट्स का भी इंश्योरेंस हो सकता है, शिपमेंट ऑफ गुड्स का भी इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Next question is question number 6. This is an example of business risk due to economic causes. ये एक ऐसा बिजनेस रिस्क है जो कि इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से है, not due to the social causes or the personal causes, human causes, but due to the economic causes. So correct answer to this question will be change in the government policy. Earthquake क्या है? Earthquake is a natural cause, right? इसके बाद में lockout in the factory, these are the personal causes of the or human causes, you can call it to be. Mechanical defect in the machinery, that will also not do, but the change in the government policy will fall under economic causes, right? Question number 7, medical devices imported from Korea, एक कंट्री से इंपोर्ट किया and further sold to Bangladesh, दूसरे कंट्री को सेल किया, ये क्या है? This is an example of entrepot. Entrepot is the correct answer. Option number C is the correct answer to this question. Moving further,
जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वी डू हैव द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। तो भाई बिजनेस में तो कैपिटल चाहिए चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कभी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोफेशन में भी ऑफिस वगैरह सेट करने के लिए कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 एवरी पार्टनर इज अ option number A both principal and agent of the firm, option number B only principal of the firm, option number C only agent of the firm, and option number D none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा both principal and agent of the firm। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 which of the following is not covered under the category of full-fledged partners, option number D partner by holding out is not actually a full-fledged partner। Question number 11 is a very easy and direct question. The minimum number of members allowed in a cooperative society. So we all know that minimum number of members required in a cooperative society is 10. Question number 12. In which type of business organization perpetual succession एक ही है, perpetual succession का feature joint stock company में ही find out होता है। So option number A will be the correct answer. Fine. Moving further, question number 13 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। Let me rub it. Here we do. So question number 13, in which type of company there is no restriction on the transfer of shares। तो देखिए प्राइवेट कंपनी को तो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, पब्लिक इशू भी कर सकती है और फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 which of the following business organizations is the most suitable from the formation angle। तो फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप इज द इजीएस्ट फॉर्म बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू start to form as well as to close it down the business। The Karta, question number 15, the Karta in the joint Hindu family business has what kind of liability? Karta की liability ना unlimited होती है। Option number B will be the correct option। Question number 16, name the law that governs joint Hindu family। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करने वाला कौन सा लॉ है? हिंदू लॉ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द कंट्रोल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड कमिटी। इलेक्टेड कमिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट which of the following is not a feature of a departmental undertaking। तो पहला ऑप्शन है, और याद रखिएगा ये पूछ रहा है नॉट अ फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। So the employees of the enterprise are not the civil servants। Option number B, they are generally considered to be a major subdivision of the government department। ये तो करेक्ट है। Then funding of these enterprises comes directly from the government treasury। ये भी करेक्ट है। All of the above हो नहीं सकता। So actually इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, the employees of the enterprise are not the civil servants। This will be the correct answer for this because जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके जो एम्प्लॉइज है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही है, सिविल सर्वेंट्स। So that is not a feature of departmental undertaking। Question number 19, this form of public sector enterprise is brought into existence by a special act। special act के थ्रू कौन सा आता है? Statutory corporation। Option number B will be the correct answer। Question number 20, the shares of the government company are purchased in the name of, option number C, President of India will be the correct answer, right। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं वीडियो के एंड तक, मैं बता रहा हूँ आपको विद इन 20 मिनट्स आपको 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है और विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाने वाले हैं। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एट माय मेल आईडी और या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, it refers to the process of sale of equity shares to the private sector or to the public। आगे आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को सेल करना या जनरल पब्लिक को सेल करना, दोनों ही बात उसमें आ सकती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो होता है कि जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर देना। So this option number B will be the correct answer। Question number 22, which of the following is feature of a public-private partnership model। public-private partnership model का feature कौन सा इसमें से होता है? Contract between private party to design and build public facilities। Facility is financed and owned by the public sector।
key driver is a transfer of design and construction risk. So all of the above is the correct answer. Option number D. In case of government company, at least what percentage of the paid up capital is held by the government? Most easiest question, direct question है, 51% कम से कम होना ही चाहिए. Right? Moving further. अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो, आप दोबारा देखना चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. Ultimate liability for unlimited liability for sole proprietors means that they can lose everything they own if their business fails. They can show the business as bankrupt. Proprietors are liable to maximum of capital invested in the business. They can sell the business and save themselves from paying the debts. No. Option number A will be the correct. That is, they can lose everything they own if their business fails. This is the biggest limitation of sole proprietorship, and this is revealed by the unlimited liability. Option number A correct answer. Question number 25. PSE, public sector enterprises, are organizations owned by government. Government owned होती है. Question number 26. A multinational corporation can be defined as a firm which own, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओन कंपनीज इन मोर देन वन कंट्रीज, एक से ज्यादा कंट्रीज में जिनका बिजनेस होता है. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है. तीन तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. ये तीनों लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, once the claim is settled, the ownership title transfer from insurer to insurer. Identify the element. तो भाई ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की बात कर रहा है कि जब इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो गया तो सारे के सारे ओनरशिप राइट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम द इंश्योर टू द इंश्योर. एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस तरह के अकाउंट पे अवेलेबल होती है? करंट अकाउंट डिपॉजिट्स पे ये अवेलेबल होती है. रिकरिंग डिपॉजिट पे नहीं होती है, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं होती है, सेविंग डिपॉजिट पे नहीं होती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट डिपॉजिट अकाउंट पे अवेलेबल होती है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30. विच एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रिस्क? रिस्क को वैल्यू करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल होता है? इंडेमनिटी होता है, प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, सब्रोगेशन होता है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. इंडेमनिटी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. रिस्क को वैल्यू करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज जितना लॉस को है उतना ही हमें कंपनसेट करना है, उतना ही इंडेमनिफाई करना है. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 30 का. क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a digital mode of payment? तो भाई बाकी सारे तो हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट is not a digital mode of payment. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि not a digital mode पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए. दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस which is not considered as a compensation against probable loss. तो कौन सा ऐसा है जो कि लॉस के अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं होता? लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer for this question. Question number 33. A doctor can operate only on the condition that the patient is ready to take his services. It is the example of this point of nature of business services. Business services के 5 I characteristics हमने पढ़े हैं, तो उसमें से यहाँ पे कौन सा है कि कस्टमर पार्टिसिपेशन जरूरी होता है सर्विसेज को रेंडर करने के लिए. दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following elements life insurance contain? यानी लाइफ इंश्योरेंस में इसमें से कौन सा वाला एलिमेंट होता है? सिक्योरिटी बिल्कुल होती है, इन्वेस्टमेंट ये भी होता है, प्रॉफिट नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में. देखिए जल्दी से हमने 34 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. टोटल 50 क्वेश्चंस का ये मैंने आपके लिए पेपर बना रखा है. Question number 35. A person gets his horse worth ₹12 lakh insured from 3 insurance companies. ये application based question है. That is A ₹2 lakh, B ₹4 lakh, and C ₹6 lakh. At the time of insurance, at the time of incurrence of loss, the compensation will be paid by the insurance companies in the ratio of 1:2, 2:3. This is the case of डैश काइंड ऑफ इंश्योरेंस. तो यहाँ पे बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशन की. तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 36. अ पर्सन गेट्स हिज स्टॉक
वर्थ रुपीज 50,000 इंश्योर्ड फॉर रुपीज 70,000। 50,000 के स्टॉक को उसने 50,000 में इंश्योर करवाया। अ फायर occurs and the whole stock get damaged, the insurance company will pay him only rupees 50,000 actual value of his stock and not rupees 70,000, which principle of insurance is applied to in this case? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसमें अप्लाई होगा कि जितना लॉस हुआ है सिर्फ वही पे किया जाएगा। जो आपने इंश्योरेंस कितने का भी कर रखा है लेकिन लॉस तो सिर्फ 50,000 का हुआ क्योंकि वहां पे स्टॉक ही 50,000 का था, तो वही पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ड अश्योरेंस इज यूज्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई होता है। अश्योरेंस वर्ड जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, डैश सर्विसेज मेक्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज पॉसिबल। तो कम्युनिकेशन से आइडियाज का एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यूजफुल लग रहे हैं और अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट लगता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम बढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। कार्बन मोनोऑक्साइड emitted by automobiles directly contributes to air pollution। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एयर पॉल्यूशन ही कॉज करेंगे। सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में हमें टोटल 8 ही क्वेश्चंस करने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ये सब तो है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पूछ रहा है नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये जो है ये ऑनलाइन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ATM फैसिलिटी। ATM फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो ATM फैसिलिटी जो है बैंक देता है अपने कस्टमर्स को, सो इट इज अ B2C कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। OLX.com इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे क्या होता है, OLX पे जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर को ही गुड सेल कर सकता है, सो ऑप्शन नंबर डी C2C कॉमर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिएटिंग ब्लॉग्स टू फॉर्म कंज्यूमर्स फोरम और प्रेशर ग्रुप्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे भी जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सो C2C इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई बिजनेस। ये ई बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कन्वीनियंस ये तो होती है ई बिजनेस में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये भी होता है, ग्लोबल रीच ये भी होता है, सो ऑप्शन नंबर डी पर्सनल टच। ये ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 45 क्योंकि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा था। Social responsibility is same as legal responsibility, broader than legal responsibility. Obviously, social responsibility is much more broader than the legal responsibility, right? Moving further, question number 47 की तरफ पढ़ते हैं और ये बस लास्ट क्वेश्चन हमारे खत्म। Question number 47, if the business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problems, it may have, so सीधी बात है कि बिजनेस के सक्सेस रेट का या फेलियर का चैलेंजेस से क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही होंगे, प्रॉब्लम्स तो होंगे होंगे, so there is no relation with the success or failure of the business with the problems and all. Option number C will be the correct answer. Question number 48, business people have the skills to solve all social problems or some social problems. Obviously only some kind of social problems can be solved by the business people, so option number B is the correct answer. Second last question, social responsibility is the manager's obligation to benefit the, किसे benefit करने के लिए होती है ये social responsibilities? Social responsibilities are in the interest of society, right? And the last question to this paper, that is environmental protection can best be done by efforts of all of the people, गवर्नमेंट का, बिजनेस पीपल का, साइंटिस्ट का, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा तभी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेरी, कोई डाउट होता है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पर। इवन आप किसी भी तरह के ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मुझे इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, या फिर किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेरीज अगर हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू।